ओके सो आज हम लोग सीपीटी का उसके स्टडी मटेरियल से वी आर गोइंग टू डू इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ द चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, स्टडी मटेरियल से हम लोग कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 6 में जो भी हम लोग को मांगा होगा वो बनाएंगे। और इसके साथ साथ क्या होगा, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 7 का भी हम लोग रिक्वायरमेंट कवर अप कर लेंगे। इलस्ट्रेशन 7 में देखिए क्या मांगा है आपसे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आपको बोला है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने। ठीक है, कैपिटल और करंट अकाउंट आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 में बना दिया, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑल्सो, कैपिटल अकाउंट ऑल्सो एंड देन करंट अकाउंट ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल we will draw the format of PL appropriation account. Okay, after that partners capital account and after that partners current account. Okay, so अगर आप लोग देखें तो ये कौन से मेथड में हम लोग सम्स कर रहे हैं, अंडर विच मेथड, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, है ना, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में ही आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर होता है। क्यों प्रिपेयर होता है, क्योंकि उस केस में आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड रहता है। इंस्टेड इन केस इफ देयर विल बी अ विथड्रॉ और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, देन ऑल्सो द कैपिटल अकाउंट विल बी अफेक्टेड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको जाना है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है। राम एंड रहीम, मतलब देयर आर टू पार्टनर्स, राम एंड रहीम स्टार्ट बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50K एंड 30K, 50,000 एंड 30,000 ऑन 1st January 2019. Okay, Ram is entitled to a salary of 400 per month. Interest is allowed on capital and is charged on drawings at the rate 6% per annum. Okay, profits are to be distributed equally. Very good. After the above noted adjustment. Okay, during the year Ram withdrew 8,000 and Rahim withdrew 10,000. That means these are the drawings of Ram and Rahim, है ना। The profit for the year before allowing the terms of partnership deed came to 30,000. मतलब this is the net profit that we are going to write in the credit side of the PL appropriation account, है ना। This is the rule. Assuming the capital to be fixed, मतलब we have to prepare the sums under fixed capital method. Means we have to prepare 3 accounts, PL appro, partners capital and partners current, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। हम लोग का उसका फॉर्मेट बस ये आपके जस्ट बोलता है एंट्रीज। ओके, फिक्स्ड प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैपिटल एंड करंट रिलेटेड टू पार्टनर्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर राम एंड रहीम, कैपिटल दिया हुआ है उन लोग दोनों का 50,000 एंड 30,000। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल गो and write there the capital of Ram and Rahim. Now what is the capital of Ram and Rahim? 50 and 30. So we will go in the partners capital account. Okay, and capital is a credit balance, है ना। capital is a credit balance, capital is a liability, है ना। so liability has a credit balance, so we will write the opening balance of capital in the credit side of partners capital account. So we are going to write here by balance BD, brought down. What is the capital of Ram? It's 50K and Rahim is 30K. Okay, okay, the Ram capital of Ram is 50,000 and the capital of Rahim is 30,000. Any doubts?
Okay, now next, Rahim is entitled to a salary of 400 per month. Okay, it means that we are giving Rahim a salary of 400 per month. So first of all, it will go in the profit and loss appropriation account, है ना. Now first thing, remember here, first thing what we are going to write, पहले अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल सैलरी, है ना. बट अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स करेंट. Okay, two partner current. So what we are going to write here, two partners current account. ठीक है. Okay, now salary to whom, why, sorry, Rahim, है ना. तो salary to Rahim, what is the amount, 400 per month. So 400 per month, and how much month we have here is obviously it will be 1 year, है ना, because they have started the business on 1st January 2019, है ना, and they are ending the business on 31st December 2019. Okay, so we are going to write here 400 into 12. What is this amount? 4,800. So we are going to write here 4,800. Now if the other adjustment of this entry will be, we have written partners current account on the debit side of PL appropriation account, है ना. So we will go in the partners current account and we will write here by PL appropriation account, and we are going to write here salary, and we are giving only this salary to Rahim, not Ram. So we are going to put a dash on Ram and we'll write here 4,800 on the credit column of Rahim. ठीक है, any doubts? PL appropriation में जाके टू पार्टनर्स लिखे, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाके बाई PL अप्रो सैलरी और रहीम के अकाउंट में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रहीम को ही मिल रहा था, राम को नहीं मिल रहा था. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम. ओके, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग. अच्छा, ये हम लोग का बीच का इलस्ट्रेशन है, तो आई अज्यूम कि तुम लोग के पास PL अप्रोप्रिएशन का बेसिक नॉलेज होगा. नहीं होगा तो इसका भी एक वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे जो बेसिक नॉलेज के लिए. ठीक है, फिर भी हम छोटा सा बता दे रहे हैं. PL अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में फर्म का एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड में फर्म का इनकम लिखते हैं. ठीक है, फर्म का, नॉट की पार्टनर्स का. और पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट में दोनों में क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का इनकम और डेबिट साइड में पार्टनर्स का एक्सपेंस, इन द सेंस कि कुछ इस तरह का एक्सपेंस जिससे उसका कैपिटल घट रहा है और कुछ इस तरह का इनकम जिससे उसका कैपिटल बढ़ रहा है क्रेडिट साइड में. ठीक है, हम वी आर गोइंग टू अपलोड अ वीडियो ऑन इंट्रो ऑफ PL अप्रो सून. ठीक है. ओके, सो क्या बोला है उसने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6%. मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आल्सो 6% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज आल्सो व्हाट 6% पर एनम, है ना. Okay, profit had to be distributed equally. Okay, the ratio is 1:1 during the year. Ram withdrew 8,000. Okay, first we have to give interest on capital. We know the amount of capital that Ram and Rahim have. So again we are going to write here two partners current account and then interest on capital. Okay, who are the two partners? Ram and Rahim. Very good. What is the capital of Ram? We can see in the capital account of both the partners 50,000 and 30,000, है ना. So 50,000 for Ram and 30,000 for Rahim. What is the interest rate? 6% per annum, है ना. 6% per annum. Okay, so what will be the amount Ram and Rahim? 1,800. Okay, 3,000 and
and 1800. This is the amount of interest that they are going to get on their respective capitals. Okay, now they have given the adjustment for drawings. Ram during the year, see they have written year, है ना. Ram withdrew 8,000, Rahim withdrew 10,000. ठीक है, Ram withdrew 8,000 and Rahim withdrew 10,000. Okay, so during the year they have both have withdrew itna, so we are going to write here. I am just keeping a short working note for interest on drawings. Just please see here. So we are going to name this as working note number 1. Okay. Okay, here calculation of interest on drawings. Okay. Number 1, Ram. How much Ram has withdrawn? Ram has withdrew 8,000 na? So 8,000 into, अच्छा during the year, so we are not going to product this amount into with 12, है ना. ये पूरा साल का अमाउंट है 8,000, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है, तो इंटू 6% ना. और अगर हमको नहीं बताता है, सो आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट इट इज ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ. सो वी आर गोइंग टू डू कि ये सिर्फ 6 महीने के लिए विड्रॉन हुआ है, ये अज्यूम करना है हमको. अगर कुछ हमको वहां पर ज्यादा इन्फो नहीं देता है तो ये यहाँ पर हो जाएगा 6/12. एंड व्हाट अबाउट रहीम? रहीम ऑल्सो सेम. How much he have withdrawn? 10,000 now. So 10,000 into 6% into again 6/12. What is the amount that we are going to get is 8,000 into 6% into 6/12. It will be 240, and this one Rahim 300. So we have got the amount of interest on drawings, है ना. अच्छा, see here. अभी हम तुम लोगों को बताएं PL अप्रो के डेबिट साइड में फर्म का एक्सपेंसेस लिखते हैं. अगर फर्म किसी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रहा है, ये सब फर्म अलाउ कर रहा था. क्या कर रहा था? सैलरी पार्टनर्स को अलाउ कर रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहा था. लेकिन कोई पार्टनर अगर ड्राइंग्स निकालता है फर्म से, तो वो टाइप ऑफ लोन हो गया, उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा फर्म. तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो फर्म का इनकम हो गया ना. तो फर्म का इनकम हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे और फर्म का एक्सपेंस डेबिट साइड. ठीक है, लाइक फर्म के लिए इनकम है लेकिन पार्टनर्स के लिए एज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस है. तो ये देखना भी हम कहाँ पुट करेंगे. ठीक है, ये अगर फर्म के लिए इनकम हो गया तो हम लोग लिखेंगे, ये लिखेंगे क्रेडिट साइड और लिखेंगे यहां पर जाके बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, राम एंड रहीम. वी आर गोइंग टू राइट हियर W1 बिकॉज वी हैव डन देयर द वर्किंग नोट, द कैलकुलेशन ऑफ दिस ड्राइंग्स. नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ राम? 240 interest on drawings. And what is the amount of Rahim? 300. Okay. अच्छा, instead of writing by interest on drawing, we can write here by partners current account. By partners current account. And after giving that, we will write here interest on drawings. ठीक है, okay. So after writing here by partners current account, we'll go in the partners current account, and we are going to write on the debit side of the partners current account. We'll write here to PL appropriation account. You guys will write profit and loss appropriation. Okay, you guys will not write PL appropriation account in the examination. Profit and loss appropriation account. Okay, interest on drawings. How much? राम का था 240, रहीम का था 300. Okay, one adjustment we are also missing. Partners current account, interest on capital na. So interest on capital we are going to put in the partners current account. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे, जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग जाएंगे यहाँ पर अगेन लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय PL अप्रो. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग PL अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में लिखे हैं.
तो पार्टनर्स क्रेडिट क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, and here we are going to write interest on capital. What is the amount of interest on capital on both 3,000 and 1,800? Okay, so approximately we have done 80% of the sums. Okay, acha, we are going to write the drawings also na, the amount of drawings also we are going to write. Where we are going to write? Not in the partners PL appropriation account, not in the partners capital account, but in the partners current account. अच्छा, by drawings है ना, by drawings the partner मतलब it will reduce the capital of partner if they drew amount. So if the capital will be reduced, now treat partners current account as same as partners capital account. If they drew, the capital will fall, and the capital represent a credit balance because it is a liability, and if it will fall, it will become debit. मतलब drawings we are going to write on the debit side of partners current account. So we'll write here two drawings respectively. Ram has 8,000 of drawings and Rahim has 10,000 of drawings. ठीक है? Any doubt? Okay, next, the profit for the year before allowing interest came to 30,000. ठीक है? प्रॉफिट तुमको दे दिया 30,000. सो प्रॉफिट हम लोग हमेशा यहाँ पर फिक्स रहता है, यहाँ पर लिखते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट कितना 30,000. ठीक है? अच्छा, एक चीज और हम तुमको बता दें, अगर ये हम तुमको बताएं लॉजिक के हिसाब से, मतलब कि रूल के हिसाब से, डेबिट क्रेडिट. ठीक है? अगर हम तुमको बताएं एकदम सिंपल सा तरीका, ठीक है, कैसे लिखना है, जो जो पीएल के डेबिट साइड में आ रहा है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है. क्रिस हो गया, इस तरह का क्रिस क्रॉस हो गया. जो जो डेबिट साइड में आ रहा है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है, और जो जो क्रेडिट साइड में आ रहा है प्रॉफिट को छोड़ के वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आ रहा है. ठीक है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं. क्रिस क्रॉस एकदम सिंपल तरीका. एक बार पीएल अप्रो बना दो, नेट प्रॉफिट छोड़ दो, बाकी को इसको पूरा करंट अकाउंट में डाल दो, क्रेडिट साइड को जो भी है उसको डेबिट साइड में डाल दो, और एक चीज डेबिट साइड में एक्स्ट्रा आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट का, क्या, ड्रॉइंग्स. ठीक है? एकदम सिंपल सा लॉजिक तरीका है. ठीक है? वी आर गोइंग टू डू मोर सम, सो टू क्लियर दिस वन. ओके, नेट प्रॉफिट दे हैव गिवन, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर. नाउ हम लोग पूरा एडजस्टमेंट कर लिए. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, सॉरी द प्रॉफिट दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स. कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम जो दोनों में से बड़ा साइड इसको टोटल करेंगे. दोनों में से बड़ा साइड ऑब्वियसली यही लग रहा है, तो इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 30,540. ओके, 30,540 आफ्टर डिडक्टिंग इट कितना आएगा 20,850. नाउ दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. वी आर गोइंग टू राइट हियर अगेन टू पार्टनर्स current account, and this is the share of profit, है ना. मतलब जो पार्टनर, जो the both of the partner have earned. Now Ram and Rahim, now they have told कि ये दोनों पार्टनर को, okay, there is a little correction in the amount, गलत कैलकुलेट हो गया था. 30,540 it will come after balancing, we'll get 940. Okay, so after deducting all the expenses and after adding up all the income of the firm, we got 20,940, which indicates the share of both the partners, Ram and Rahim. So what is their ratio? Half. They have told that you have to distribute the profit equally, है ना. Profit are to be distributed equally, मतलब half, मतलब 1/2 into 20,940. Again here into 20,940, it will gives us to 10,470. Correct? 10,470. So both the partners share the profit of 10,470 equally.
So again we have written here two partners current account. Now again we will go in the credit side of the partners current account and we will write here by PL appropriation account, by PL appropriation account, यहाँ लिखेंगे share of profit and then 10,470 in each column of their respective partners. ठीक है, ओके अच्छा, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं बोला होता तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का ये सब एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं कहाँ करते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये सब एडजस्टमेंट जो कहाँ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ, सीधा BDCD करके उतर जाएगा। ओके, फर्स्ट हम लोग पूरा PL अप्रोप्रिएशन को बैलेंस कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल को भी बैलेंस कर लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा सीधा इसको बैलेंस कर लो, इसको बैलेंस कर लो। तो इस साइड भी आएगा 50,000 और इस साइड भी आएगा 30,000। अगेन दिस ऑल्सो विल कम्स टू 50,000 एंड 30,000 एंड हियर ऑल्सो इट विल reflect 30,000 and 50,000. And what we are going to write here, the balance is to balance CD. मतलब these are the balancing figure and the closing balance of partners capital account. Okay, एक चीज तुम देखो, स्टार्टिंग में तुम्हारा पार्टनर 50,000 30,000 था, क्लोजिंग में तुम्हारा कैपिटल 50,000 और 30,000 था। तुम्हारा कैपिटल जो है स्टार्टिंग में भी उतना ही था, क्लोजिंग में भी उतना था, कैपिटल फिक्स था। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल मेथड। और अगर वो सब एडजस्टमेंट हम यहाँ करते तो ये प्लस होता, ये माइनस होता, मतलब कैपिटल बहुत कम मतलब कि हम नील चांसेस था कि सेम आता है ना, मतलब फ्लक्चुएट करता, कुछ अमाउंट अलग वगैरह आता। तो इसी के लिए उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब जो है वो कहाँ पर अमाउंट आएगा, ये आएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ठीक है, अब जल्दी से पार्टनर्स करेंट अकाउंट का टोटल करिए। व्हाट विल बी द टोटल ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट? दिस साइड 12,270. Here also we are going to write 12,270. This side 13,470. Here also we are going to write 13,470. After deducting it, what will get? After deducting this amount, okay, again there is a little mistake in the calculation. और तुम एक काम करो, हम ही को दे दो कैलकुलेटर, हम ही कर लेते हैं कैलकुलेटर यहाँ पर। ओके, व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस अमाउंट? रहीम का 17,070। ठीक है, 17,070। ओके, नाउ अब आएगा बैलेंस CD। सो वी विल राइट हियर टू बैलेंस CD। ये मेरा क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ओके, अब माइनस करके बताओ। 5,230 एंड दिस विल गिव्स अस टू 6,770। नाउ दिस कंप्लीट्स आवर सम। ओके, ये है सम्स का पूरा फॉर्मेट और पूरा सम्स देख लो। सो डन। Next class we'll do the next sums. Okay.